क्वेश्चन एक ही था, what is the probability that the balls so drawn are different are alternately of different colors. तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है वो सबका क्या करते हैं, एंडिंग या ऑरिंग एडिशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू इवेंट, Addition. addition. Okay, so now take the addition of P of A plus P of B, and that is your final answer. So it's 6/35. Okay, understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Miss, can you tell me once again? My network issue was there, so I can't join it. Okay, no worries. We have to draw the four balls from the box. There are the total 7 balls in the box. Okay. Now, what we have to find out? We have to find out the probability of the balls are drawn alternately of different colors. Okay, this is the condition. So, how we can find out? First, you have to think about the possibilities. Okay, how many possibilities are there? So, there are the two possibilities. First one is that suppose I pick the first ball, it is the white. Now, second should be black because it's already given in the question. Okay, alternative color hona chahiye. So definitely the second will be black, then third will be white, and next one will be black. And the second possibilities of that, first one be black, then white, then black and white. Okay. उससे अलावा और कोई possibilities नहीं है. So you have to find out the probability of these two events, P of A and P of B. So P of A, first white color. So white, there are 4 white balls are there. So out of 7, so probability of that 4/7. Now second one is the black color. So there are the 3 black colors are there, but it is divided by the 6, not 7. Why? Because it is given without replacement. Okay, so you have already drawn the one ball, white ball. So वो box के बाहर आ गया है. So now only 6 balls are remaining in the box. So probability of the first black ball, that is 3/6. Now third one is should be white. Now one white is already outside of the box. So 3 are remaining in the box and total 5 balls are there. So 3/5. And the last black, that is 2/4. So you have to take the multiplication of this. So we'll get the answer is 3/35. Similarly, you have to find out the P of P. Okay. So B by B comma W comma B comma W. Black, white, black, white. So again, you have to use this same formula. Then you will get the answer is 3/35. So there are the two possibilities. जितनी भी possibilities होती है, तो you have to take the addition of that. क्योंकि possibility ये होगा या तो ये होगा, ORing आता है, right? So you have to take the addition of that. So P of A plus P of B. So that is your final answer. It is 6/35. Understood? Yes, ma'am. Now next one. Write down the second example. So second example is, suppose a box contains 5 white and 7 red balls. 2 balls are drawn random from the box without replacement. So first question,
what is the probability that both balls are white? Second, what is the probability that second ball is red? There are two different questions. Okay. So find out the first one. लिख लिया क्वेश्चन? चेंज करूं? Yes, ma'am. Yeah. I'm 5 by 33. First answer is 5 by 33. Yeah, it's very simple. बाकी लोगों को मिला? So first you have to find out the what is the probability that both balls are white. तो अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया वैसा ही करना है. फर्स्ट बॉल मैंने पिकअप किया व्हाइट कलर का है और सेकंड बॉल भी मैंने पिकअप किया वो व्हाइट कलर का होना चाहिए. तो व्हाइट कलर के बॉल्स कितने थे आपके? 5 बॉल्स. तो फर्स्ट वन इज 5 बाय टोटल बॉल्स कितने हैं? 5 और 7 12. या तो 5 by 12 into 4 by 11. Now for the second question, what is the probability that second ball is red? The second ball is fixed, it should be red, but first ball कोई भी हो सकता है, correct? It may be white, it may be red. So first for that you have to find out the possibilities of that. How many possibilities are there? So there are two possibilities. Yeah, correct. First is white, then second is red. Yeah, first is red and second is red. Okay. So same two possibilities का आंसर फाइंड करो, इवेंट ए एंड इवेंट बी, और दोनों का एडिशन करो जैसे फर्स्ट एग्जांपल में किया था. ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो फिर बताओ, मैं लिखती हूँ. मैम वो फर्स्ट वाला नहीं समझा मैम. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आप बताओ. Ma'am, if the first ball is red, then 7 upon 22. If the first ball is red, then it is the 7 upon 22. Okay. या उससे पहले कौन फर्स्ट नहीं समझा, कौन था? मिस मैम. या टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. मैम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट द बोथ द बॉल्स वाइट? हाँ, ओके. सो दोनों साथ में तो उठाना नहीं है बॉल, 1 by 1 उठाते हैं बॉल हम लोग, ठीक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है. ओके. सो बोथ शुड बी वाइट ऐसा बोला है, तो क्या होगा? W and W, करेक्ट? या मैम. या अभी उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो सपोज दिस इज माय इवेंट ए, तो फर्स्ट जब व्हाइट बॉल में पिकअप करती हूँ तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? कितने व्हाइट बॉल्स है? 5. टोटल बॉल्स कितने हैं? 12. फाइन. तो एक बॉल हो गया, मैंने उठा लिया. अभी कितने बॉल बचे? 4. व्हाइट 4 बचे, और टोटल कितने बचेंगे? 11. हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो. ओके. समझ गया. Ma'am, second answer is 77 by 132. या Hello, ma'am. I'm getting different answer. I'm actually getting 7 by 22 plus 7 by 12. Yes, 7 ma'am, by same. 12. या तो सेम ना, 77 by 132, तो उसका वही सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 7 by 12 ही होगा शायद.
Yes, ma'am. Yeah. Yeah. मैम सेकंड पार्ट बताओ ना एक बार. Okay. Now in the second part, the one condition is there कि second ball should be red. Okay. तो second ball मेरा red compulsory है. तो first ball तो कोई भी हो सकता है ना, वो नहीं दिया है हमको. तो उसके लिए पहले मैंने पॉसिबिलिटीज सोची. तो मेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी मिली कि मैं फर्स्ट मेरा व्हाइट भी हो सकता है, और सेकंड पॉसिबिलिटीज है मेरी कि रेड भी हो सकता है. सेकंड फिक्स है, फर्स्ट फिक्स तो बोला नहीं था. तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इट मे बी व्हाइट, मे बी रेड. ओके. नाउ सेम, फर्स्ट व्हाइट पिकअप होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 5/12. और उसके बाद रेड मिलने की 7/11. ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, जो भी आंसर आता है वो. और सेकंड कंडीशन सेम, फर्स्ट इज द रेड, तो रेड है 7, टोटल है 12, ये 11 है. और सेकंड भी रेड लेना है, तो सिमिलर यहाँ पे 6 और 11. ये दोनों का आंसर फाइंड करो. ये दोनों का जो भी आंसर आता है दोनों का एडिशन होगा. दैट इज योर सेकंड आंसर. अंडरस्टूड? Is it clear? I'm Yes, ma'am. audible? Okay, okay. So the final answer is 7/12. Should I go ahead? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, write down the next question number 3, example number 3. एक मिनट, वेट. उससे पहले नेक्स्ट करते हैं. एंड ट्रायल्स वाला लास्ट में कराती हूँ मैं. जस्ट वेट. अभी कौन है ज्वाइंट हो रहा है? ज्योति. या, राइट डाउन दिस फोर्थ वन. थर्ड वन वी विल डू आफ्टरवर्ड्स. Sorry. Done? Yes, ma'am. Okay. So first, a box contains 10 white. First box contains 10 white and 3 black, and the other box, second box,
3 white, 5 black. You have to pick up the 2 balls from the first box and place in the second box. Okay. Now 1 ball is taken from letter. What is the probability that it is the white ball? क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है? मैं 2 बॉल उठा रही हूँ, पहले तो मुझे 2 Yes, ma'am. बॉल फर्स्ट बॉक्स में से उठाने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और जो भी है वो मैं कहाँ पे सेकंड बॉक्स में ट्रांसफर कर रही हूँ, और सेकंड बॉक्स में ट्रांसफर करने के बाद उसमें से व्हाइट बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो फाइंड करना है. सो पहले नाउ फर्स्ट यू टेल मी हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ दैट. सेकंड बॉल में सेकंड में से Ma'am. व्हाइट बॉल मुझे निकालना है. मैम 3. 3. विच वन? मैम एक तो दोनों व्हाइट हो और दूसरा वाला दोनों ब्लैक हो, या ओके, एक व्हाइट ब्लैक हो. या करेक्ट. और एक व्हाइट एक ब्लैक में भी 2 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी. Yes, ma'am. फर्स्ट व्हाइट फर्स्ट ब्लैक, या फर्स्ट ब्लैक देन सेकंड व्हाइट. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Exactly. So write down the first one. Ma'am, Bo- could you just show the question once, please? Okay. So remaining guys, write down the first one. First possibilities consider karo. Both balls are white. Both balls are white. And find out the answer of that. अभी ये किसके लिए करेंगे? For that you have to consider the box number 1. हो गया आपका? Yes, ma'am. Done. Okay. So for that, write down the first condition. Both balls are white. Okay. कुछ तो इश्यू हुआ है. Both balls are white. Fine. That means I can write down the event name में ऐसा ही दे रहे 2B. Sorry 2W. 2W. Or 2B. व्हाइट कलर लिया है ना मैंने, इस 2W. ओके. अभी ये जो पहले हम लोग पिकअप कहाँ से कर रहे हैं? फर्स्ट बॉक्स में से. सो यू हैव टू कंसिडर द फर्स्ट बॉक्स हियर. सो कितने व्हाइट बॉल्स थे फर्स्ट बॉक्स में? टोटल 10 व्हाइट बॉल्स. तो क्या मिलेगा? 10. और टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स कितने हैं? व्हाइट एंड रेड, ब्लैक 13. और सेकंड क्या आएगा? विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो डेफिनेटली इट इज 9/12. उसका आंसर क्या मिला बताओ? Fifteen upon 26. क्या मिला? 30. 15/26. करेक्ट. Yes, ma'am. अभी ये फर्स्ट बॉक्स में से आपने ड्रॉ किया. नाउ यू हैव टू ट्रांसफर इनटू द सेकंड बॉक्स. सो राइट डाउन द स्टेटमेंट हियर. आफ्टर ट्रांसफर second box contains how many white balls? अभी व्हाइट बॉल कितने हो जाएंगे आपने? Hello, ma'am. Yes, yes. Ma'am, we also have to take the condition of the first white ball or the second white ball, na? We Yeah, are only yeah. taking two No, white no. balls. We will take this condition also. There are 3 possibilities, 3 conditions are there. Here I am doing the first condition. Okay. Later on I am Okay, ma'am. taking समझा. yeah, later on I am taking this condition also. So first condition I have taken both poles are white, and I have found the probability for the box number 1. Okay. So मुझे आंसर मिला 15/26. Now what is your question? You have to transfer these balls into the second box. तो अभी मैं दोनों व्हाइट लिया है, दैट मीन मैं 2 व्हाइट बॉल सेकंड में ट्रांसफर कर रही हूँ.
So write down here, after transferred, second box contains how many white balls? Tell me. Total white balls कितने हो गए अभी सेकंड में? 3 white ball. 3 तो था, मैंने 2 Five. ट्रांसफर किए Five. 5 एग्जैक्टली। तो अभी सेकंड बॉक्स में मेरा व्हाइट बॉल हो गया 5, ठीक है। तो अभी सेकंड बॉल में अभी आप जो बॉल आपको जो एक्चुअली बॉल जो पिकअप करना है, जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, वो कहां से पिकअप करना है? सेकंड बॉक्स में से करना है। इट्स रिटन इन द क्वेश्चन। ओके, वन बॉल is taken from the letter. Letter means what? LATTER. That is the पीछे वाला. Okay, पीछे वाला मतलब अभी यहाँ पे 2 बॉक्स है तो सेकंड बॉक्स कंसीडर होगा. So you have to draw the balls from the second one. तो अभी सेकंड बॉक्स में से व्हाइट बॉल पिकअप करने की पॉसिबिलिटीज की क्या होगी बताओ जरा. 1/2. 5/59. 5/10 आएगा 59. नहीं, दिस इज 5. अभी इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है? सेकंड बॉक्स में कितने बॉल्स थे पहले? 5 और 3. 5/10. या और मैंने दो ट्रांसफर किया तो टोटल 10 बॉल्स हुए और व्हाइट बॉल 5 है. So what I have to find out? I have to find out the probability of balls which drawn from the second box and it is white. So total white balls are there 5 and total number of the balls are 10. So this probability is 5/10. Understood? Yes, ma'am. किसी को डाउट है इसमें? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Now we are taking the second condition. One white, write down the second condition. One white, one black. आप लिखना ऊपर, one white, one black. Okay. वन ब्लैक जो मैंने लिखा इसमें भी मेरा 2 कंडीशन हो जाएगा. वन इज white and one black. Okay. I'm 5/26. टोटल आंसर किसका? आंसर फर्स्ट बॉक्स का. Yes, ma'am. Okay. So now for that there are 2 possibilities. Second condition में 2 possibilities आ रही है. Which one? First one white हो सकता है और a black हो सकता है. तो one ball is white and one is black. Otherwise what happened? First one is black and second one is white. Okay. तो अभी इसका ये हम लोग फर्स्ट बॉक्स के लिए कर रहे हैं. तो इसका आंसर क्या मिल रहा है फर्स्ट का? टोटल व्हाइट बॉल्स कितने थे? 10 और नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 10 एंड कितना था? ब्लैक 13 इनटू ब्लैक का कितना आएगा? 3/12. तो इसका टोटल आंसर क्या आएगा बताओ? 5/26. 5/26. Now similar find out here. First is the black, so 3, total is 13. First one is the white, so 10 और टोटल एक रिड्यूस हो गया मतलब 12. तो इसका आंसर क्या आया? 2/5. 2/5. Ma'am, the total answer. टोटल नहीं, इसका आंसर पूछ रही हूँ मैं. Same है मैम. 5/26. 5/26 करेक्ट. नाउ अभी क्या करेंगे? जब भी आप पॉसिबिलिटीज कंसीडर करते हो, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू टेक द एडिशन ऑफ दैट. सो फर्स्ट और सेकंड का एडिशन किया तो क्या मिलेगा? 10/26 करेक्ट. 5/20. 10/26 होगा ना एडिशन. फाइन.
ये हो हाँ गया आपका simplify. फर्स्ट बॉक्स का. नाउ after transfer, write down the statement over there. After transfer, second box contains how many white balls? अभी white balls कितना होगा 4. second box में? 4, क्योंकि आपने white ball 1 ही ट्रांसफर किया है. एक 1 white है 1 black है. करेक्ट. कोई भी कंडीशन लो, यहाँ पे 2 कंडीशन है, white black या black white, बट white ball तो एक ही है ना. So only 1 white ball ट्रांसफर हुआ. So now there are total 4 white balls. तो व्हाइट बॉल अभी सेकंड बॉक्स में से उठाने की, पिकअप करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4 बाय कितना बॉल्स हुए टोटल? 10 हुआ ना? 4/10. 4/9. 9. 9 या 10? 9 क्यों होगा? टोटल बॉल्स तो 2 ट्रांसफर कर रहे हैं ना हम लोग. एक ब्लैक भी बढ़ेगा. हाँ तो ब्लैक इज फाइन ना. नंबर, टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स में तो ब्लैक कंसीडर होगा कि नहीं? यस मैंने होगा. 4/10 ही बोला. तो टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स तो 2 हम ट्रांसफर किया, तो 8 + 2 10 हो गया, और व्हाइट बॉल 1 था, तो इसीलिए 3 + 1 4 हुआ. सो द फ्रॉम द सेकंड बॉक्स व्हाइट बॉल को पिकअप करने की प्रोबेबिलिटी हुई अपनी 4/10. करेक्ट. नाउ थर्ड कंडीशन, बोथ बॉल्स आर ब्लैक. मैम 1/26. So okay, it's 1/26 for the box number 1. Now what about the box number 2? 7/10. 3/10. Sorry? 3/10. Yeah, it's 3/10. बाकी लोग कर लो, आंसर आ रहा है कि नहीं. फर्स्ट बॉक्स का 1/26, सेकंड का 3/10. डन. सिंपल है. Yes, ma'am. 3/10. यस. अभी ये हम लोगों को 3 अलग, मतलब 3 अलग अलग कंडीशन के आंसर्स मिले. करेक्ट. बट हमका फाइनल आंसर एक ही होना चाहिए. What is the probability that it is the white ball when you pick up it from the second box? Okay. तो अभी क्या करेंगे लास्ट में? Required probability, how we can find out? एडिशन. किसका एडिशन करेंगे? तो वो 3 कंडीशंस का. 3 कंडीशन में भी तो 5/10. I have a doubt. या 3/10 मैं नहीं समझा. कौन मेरा सा? 7/10 आ रहा है. कहाँ पे? मैम सेकंड बॉक्स, मैम वो मेरा 7/10 आ रहा है. 3/10. मतलब लास्ट कंडीशन में? या मैम. लास्ट कंडीशन में सेकंड बॉक्स में व्हाट इज द लास्ट कंडीशन डियर? बोथ बॉल आर ब्लैक. हाँ, बोथ आर वाइट ब्लैक. का ढूंढना है ना. वाइट का ढूंढना है. ब्लैक का. हाँ, तो हम लोगों को नंबर ऑफ द बॉल्स इंक्रीज होगा सेकंड बॉक्स में. पहले से 8 था, नाउ आई एम ट्रांसफरिंग 2 ब्लैक बॉल्स, तो माय टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स आर 10. ओके, 8 + 2 10 हो गया. बट आई ट्रांसफर द ब्लैक कलर बॉल्स, मैंने व्हाइट कलर ट्रांसफर नहीं किया है. तो हाउ मेनी व्हाइट बॉल्स आर देयर? 3. सो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितना होगा व्हाइट बॉल पिकअप करने की? 3/10 ना. Yes. Okay, so for the final answer, what we have to do? अभी हम लोगों ने ऐसे कंडीशन, यहाँ पे 2 कंडीशन वाला दिया था कि मैं फर्स्ट बॉक्स में से ट्रांसफर कर रही हूँ बॉल्स, 2 बॉल्स उठा के सेकंड बॉक्स में, और सेकंड बॉक्स में से जो भी एक बॉल उठा रहे हैं उसकी वो व्हाइट कलर का होना चाहिए. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगा? आपने जो फर्स्ट बॉक्स का आंसर मिला, दिस मल्टीप्लाई बाय द सेकंड बॉक्स. तो ऐसे तीनों का अलग अलग मिला आपको आंसर. फर्स्ट बॉक्स मल्टीप्लाई सेकंड बॉक्स आंसर,
of the first condition, similar for the second one, similar for the third one. तो ये 3 कंडीशन का एडिशन करना है, बट एडिशन डायरेक्टली आंसर किसका, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके करेंगे. तो फर्स्ट बॉक्स का आंसर क्या आया था आपका फर्स्ट कंडीशन में? 15 by 26. 15 by 26. Yes. So it's 15 by 26 multiply with the, वही कंडीशन में सेकंड बॉक्स का आंसर क्या आया था? 1 by 2. ओके, ये 1 है. ये हो गया फर्स्ट कंडीशन प्लस सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन में आपको आंसर मिला 5 by 13 और सेकंड बॉक्स का आंसर मिला आपको 4 by 10 प्लस थर्ड कंडीशन. थर्ड कंडीशन में आपको फर्स्ट आंसर मिला 1 by 26 और नेक्स्ट बॉक्स का मिला दैट इज 3 by 10. तो ये आपका जो आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. $59 upon 130. Yes, ma'am. So it's I have written 0.45. देख लो एक बार, सेम ही है ना. या मैम. याद रखो कभी भी आंसर क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होती है प्रोबेबिलिटी का आंसर की? It should vary between 0 and 1. या 1 ग्रेटर देन 1 कभी नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना. सो द फाइनल आंसर इज 0.45. ठीक है. Write down the next one. Example number 5. A lot consists of 10 good articles, 5 with minor defects, not 62, 2 है. 2 with major defects. 2 articles are chosen from the lot at random without replacement. Find probability that first, both are good. Second, both have major defects. Third, at least one is good. Fourth, at most one is good. Fifth, exactly one is good. Sixth, neither has a major defects. Last one, neither is good. So there are the total 7 questions are there in one question, in one example. कितना टाइम बाकी है? 10 5 हुआ. 10 minutes मिस बाकी है. हाँ ठीक है, जितना हो आधा होगा आधा करेंगे. Ma'am, probability 1 is 3 by 8, both good.
या करेक्ट। क्वेश्चन लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am, not yet. And second is 1/120. या करेक्ट। आप लोगों को एनसीआर वाला टेक्निक पता है क्या? मैम पता है, but then we have not used it in probability. मतलब प्रॉब्लम्स वैसे नहीं किए। ओके ठीक है, मैं ये एग्जांपल उससे करके बताती हूँ। हो गया? क्वेश्चन लिख लिया? शुड आई चेंज स्लाइड? Yes, ma'am. ओके सो फर्स्ट बोथ आर क्या लिखा है? बोथ आर गुड ना? या देखो there are the total 10 good articles, 4 with minor defects and 2 with the major defects. So you have to find out that 2 articles are selected, 2 articles are drawn from the lot at the random without replacement. Okay, so find the probability of the first question, that is the both are good. तो डेफिनेटली वी नो, पहले जैसे क्वेश्चन हम लोग बॉल्स के जगह पे यहाँ पे आर्टिकल्स है, अभी टोटल 10 आर्टिकल्स गुड है। सो फर्स्ट इज द 10 बाय टोटल कितने हैं? 10, 4 एंड 2 16, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये भी गुड होना चाहिए। तो गुड आर्टिकल 10 में से कम मतलब 9 और 15, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। इट्स सिंपल, ये टेक्निक एक्चुअली सिंपल है कंपेयर विद द एनसीआर। बट अगर आपको एनसीआर टेक्निक अप्लाई करना है तो एनसीआर से कैसे करते हैं? टोटल कितना आपको पिकअप करना है? 2 आर्टिकल्स। ओके, और कौन सा? बोथ आर गुड। अभी गुड कितने हैं? 10 है, तो एन एक्चुअली होता है एनसीआर। तो नंबर ऑफ द बॉल्स कितने हुए? दैट इज 10। ओके गुड, एज पर योर क्वेश्चन। और आर मीन्स how many you have to draw? That is 2. अभी तो we have written over here 10CR, 10C2. Now total number of the articles कितने हैं? 16, जिसमें से हमको 2 लेना है, तो वो हो जाएगा आपका 16C2। ये जो R होता है that mean how many balls या articles you have to drawn from the particular box. Okay, डिनोमीटर में जो लिखते हैं दैट इज द टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स इन अ बॉक्स, और ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखते हैं दैट इज कौन सा पर्टिकुलर कलर बोला है आपका, वो कलर टोटल कितने हैं बॉक्स में, वो उसका कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे बोला है बोथ आर गुड, तो मेरे पास गुड आर्टिकल्स 10 थे, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटर्न द 10C2 और आउट ऑफ 16C2। अभी जब इस अप्लाई कैसे करते हैं? इट फॉर्म ऑफ द फैक्टोरियल 10C2, दैट मीन यू हैव टू राइट डाउन द 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल जो r है, और n माइनस r मतलब 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। ये ऊपर का हुआ। नीचे में सेम 16 फैक्टोरियल
और नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ 16 माइनस 2 मतलब 14 फैक्टोरियल। अभी उसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे सॉल्व? 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि नीचे 8 फैक्टोरियल है, तो मुझे 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल को कैंसिल करना है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटर्न दिस, सॉरी। So now 8 will be cancelled. तो ये आपका ऊपर न्यूमरेटर का आंसर हो जाएगा सिर्फ। हाँ, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आधा आधा लिख रही हूँ। तो ये 5, तो 9 मल्टीप्लाई 5 45/2। तो ये न्यूमरेटर में आपको मिला 45/2। और सिमिलर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में करेंगे तो क्या लिखेंगे? 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14 फैक्टोरियल। सो 14 कैन आई कैन कैंसल इट। ओके, तो 16 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 2, तो उसका आपको जो भी आंसर आया वो यहाँ पे लिखो डिनोमिनेटर में, और वो दो सब कैंसल करके आपको फाइनल आंसर मिलेगा 3/8। दिस इज द एनसीआर टेक्निक। मिस वो 8 फैक्टोरियल कैंसिल किया वहां से वापस एक बार बोलो ना, तो कुछ समझा नहीं। ओके, मैं वापस लिखती हूँ फिर। नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन में इतना जगह मिलता है मुझे सिर्फ लिखने के लिए। ठीक है, क्या था मेरा? ऊपर था 10 फैक्टोरियल था और नीचे मेरा 8 फैक्टोरियल था। तो अभी मुझे 8 फैक्टोरियल कैंसिल करना है ना, तो इसीलिए मैंने 10 फैक्टोरियल को कन्वर्ट किया 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। और नीचे मेरा था 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 हो जाएगा वो। और यहाँ पे 8 फैक्टोरियल एज इट इज रखा, तो ये दोनों को कैंसिल कर दिया, तो मुझे आंसर मिला यहाँ पे 45/2। नहीं, 45 मिलेगा, सॉरी 2 कैंसिल कर रही ना, दिस इज कैंसल, या 45 आंसर मिला। ओके, ये मेरा हो गया न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर में क्या था आपका? 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 14 फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ पे 16 को कन्वर्ट करूंगी 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 14 फैक्टोरियल। तो 14 कैंसिल किया, ये 2 8 हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 15 मल्टीप्लाई 8 कितना हो रहा है बताओ? 120। ओके ठीक है, नहीं फिर भी ये हो गया 45, मतलब 120। 3/8। हाँ, मतलब ये 3 आप कैंसिल करेंगे, मेरा पेन चल नहीं रहा है, आंसर विल बी 3/8। ओके, समझा? दिस इज द एनसीआर टेक्निक। और आपने मैंने पहले वो बताया आपको क्या था, 10/16 एंड 9/16, तो उससे भी यही आंसर आएगा। करेक्ट मिला? दोनों आंसर सेम? यस मैम, बट वो ज्यादा इजी है। यस मैम। हाँ वो इजी है डेफिनेटली, पता ये आपको मतलब बताया मैंने, एनसीआर टेक्निक अगर यूज करना है किसी को तो। ठीक है, नाउ सेकंड वन, बोथ हैव मेजर डिफेक्ट्स। तो क्या है, कितने हैं मेजर डिफेक्ट्स वाले? 2। सो 2/16 एंड 1/15। तो आंसर विल बी 1/120। Did you get it? यस मैम। बाकी लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Now what is your third one? 3/4। 5/8। At least one is good. उसका मतलब क्या होगा? At least one is good. तो इट्स कंपल्सरी कि 1 तो गुड होना ही चाहिए, राइट? 2 गुड होगा तो भी चलेगा, बट
1 होना जरूरी है, तो उसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज आएगा। 3 possibilities, right? 3 कैसे आएगा? 1 major, 1 good, 1 minor, 1 good, and both are good. नहीं नहीं, माइनर एंड मेजर तो कंबाइंड ले सकते हैं ना हम लोग, उसको अलग अलग करने की क्या जरूरत है? योर कंडीशन इज एटलीस्ट 1 इज गुड, दैट मीन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, बोथ आर गुड या 1 गुड एंड 1 डिफेक्टिव। डिफेक्टिव में कुछ भी डिफेक्ट हो, मेजर हो या माइनर हो, इट डजंट मैटर। क्लियर? Yes, ma'am. Yeah. So take the 2 possibilities. First, both are good. Okay. And next one is good and 1 is bad. Yeah, 1 with the defect. Anyway, you can write. So दोनों good है. So write down the 10 by 16 and 9 by 15. Ma'am, still we'll get the 3 conditions, na? 3 condition मुझे समझ में नहीं, 3 क्यों लेना है? Ma'am, good and defective, then defective and good, and then good and good. या हाँ, जिसमें गुड एंड डिफेक्टिव है, इसमें अगर फर्स्ट गुड है देन डिफेक्टिव है, और या तो डिफेक्टिव है एंड गुड है, इसमें 2 आएगा। Ah, yes. यस यस। तो राइट डाउन द फर्स्ट वन, बोथ आर गुड। ओके, सो उसके लिए आंसर मिलेगा 10 by 16 एंड 9 by 15। तो ऑलरेडी वो फर्स्ट में हमने फाइंड करके रखा है, दैट इज 3 by 8। ओके, नाउ टेक द सेकंड कंडीशन। इन द सेकंड कंडीशन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। मेन सेकंड कंडीशन इज 1 is good and 1 is defective. So the first, इसमें 2 कंडीशन होगा, गुड डिफेक्टिव या तो डिफेक्टिव एंड गुड। फाइन। अभी डिफेक्टिव अपने पास 4 मेजर एंड 2 माइनर है, तो यू हैव टू कंसिडर टोटल 6 आइटम्स। टोटल 6 कंसिडर करेंगे डिफेक्टिव के लिए। ओके, सो ये कंप्लीट करके रखना अप टू दिस पॉइंट। थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर हो रहा है तो आपसे। Ma'am, answer is 21 by 24. Final answer is 7 by 8. Yeah, 21 by 24. Correct. 7 by 8. So up to third question, you have to complete. You have to try for that. Okay. Otherwise, we will discuss in the next lecture. Tuesday, मतलब tomorrow, it is the tutorial lecture. Sorry. Yeah, sorry. Tuesday is the tutorial. Okay. मैंने पहले बोला था orientation में कि we will consider the tutorial on Friday, but as per the timetable, it is the Tuesday. Okay. So we will follow the timetable. So Tuesday tutorial है, last lecture 12:45. Labs अभी नहीं हो रहा है, but definitely tutorial will be happen.